ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا نہیں تھے تم کو گواہ جبکہ آئی یعقوب کو موت، جبکہ پوچھا تھا اے بیٹو اپنے بیٹوں کے بھلے کو کہ کس کو پوجو گے میرے بعد؟ سب نے جواب دیا کہ پوجیں گے آپ کے معبود کو اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کو، معبود یکتا کو، اور ہم اسی کی نیاز مند ہے۔ اے یہودیوں، ان یہودیوں کو دیکھو کیسی بے پرکی اڑاتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے مرتے دم وصیت کی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہودی رہنا ہے نا۔ یہودی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب نزا کا وقت آیا، جب آخری وقت تھا، تو آپ نے وصیت کی تھی کسے؟ اپنے بیٹوں کو کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو کس پر رہنا؟ تم یہودیت پر رہنا ہے نا۔ ان کو کہتے ہوئے یہ بھی نہیں سوجا کہ اس وقت یہودیت کا وجود کہاں تھا ہے نا۔ ان کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہودیت کا وجود کہاں تھا۔ یہودیوں کے مورث لوگ تھے، انہی سے پوچھ لیا ہوتا کہ حضرت یعقوب کی وصیت کے ساتھ کیا نہیں تھے تم لوگوں کے مورث لوگ ہے نا۔ تو ہاں یہودیوں کے مورث لوگ تھے، اور مورث میں کیا؟ آبا و اجداد ہے نا، باپ دادا۔ تو یہودیوں کے باپ دادا اس وقت موجود تھے، کب؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت۔ تو کیا کرے کہ انہی سے پوچھ لیا ہوتا تو بہتر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی وہ کیسی وصیت تھی اور کس بنا پر، اور کیا وصیت میں آپ نے فرمایا تھا، تو یہ بہتر ہوتا۔ کیونکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے مورثین یعنی ان کے آبا و اجداد گواہ تھے اس بات کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تم دین اسلام پر رہنا اور ایک خدا کی عبادت کرنا۔ کیا نہیں تھے تم لوگوں کے مورث لوگ گواہ؟ ضرور تھے، جبکہ آئی تھی یعقوب کو موت کی گھڑی ہے نا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا، موت کی گھڑی آئی، اس وقت گواہ تھے۔ تو حضرت یعقوب دیکھ رہے تھے کہ مصر والے کوئی بت پوجتے ہیں، کوئی آگ پوجتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچانا تھا ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ مصر کے اندر بت پوجا ہوا کرتی تھی، صنم قدے بنائے گئے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی بہتی ہوئی ندیوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی موت کے فرشتے کی پوجا کرتا تھا، یعنی ہر کسی نے اپنے لیے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ہے نا اس فتنے سے بچانے کے لیے کہ میری اولاد کہیں اس فتنے کے زد میں نہ آ جائے، اس فتنے میں پھنس نہ جائے کہ کہیں وہ لوگ بھی ان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی میں نہ لگ جائے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت کیا فرمایا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنا، جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس کی عبادت اسماعیل کرتے ہیں، جس کی عبادت ابراہیم کرتے ہیں ہے نا۔ تو کیا وصیت کی تھی کہ دین حق پر رہنا۔ چنانچہ کیسی مبارک گھڑی تھی جبکہ پوچھا تھا اپنے بیٹوں ہی کے بھلے کو کہ ان کا مستقبل تباہ نہ ہو، یعنی ان کا بھوشیہ کیا ہو؟ خراب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حساب کا دن آئے تو وہ کیا ہو جائے؟ گرفت میں مبتلا ہو جائے۔ سوال یہ کیا تھا کہ میرے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا پرست ہو ہے نا، کیا کہ میرے سامنے تم لوگ خدا کو ماننے والے ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد کیا تم میرے مرنے کے بعد بھی اسی خدا کو مانو گے؟ سوال یہ کیا تھا۔ خدا پرست ہو یا بتاؤ کہ میں نہ رہوں
तो किसकी पूजा करोगे मेरे मरने के बाद? कहीं खुदा परस्ती से छोड़ तो न दोगे, है ना? खुदा परस्ती से, खुदा को मानने से अपने रास्ते को हट तो न जाओगे, अपना मुंह तो न फेर लोगे उस रास्ते से जिस रास्ते पर मैं और मेरे आबाओ अजदाद थे। उनके 12 बेटे और पोतों सब ने इस सवाल का जवाब दिया कि जैसे अब पूजते हैं इस तरह आइंदा आपके बाद भी पूजते रहेंगे, है ना? कि जैसा आपके सामने हम खुदा को पूजते हैं, उसकी इबादत करते हैं, आप नहीं रहेंगे। आपके इंतकाल के बाद, आपके इस दुनियाए फानी को अलविदा कहने के बाद भी हम उस खुदा को ही मानेंगे, हम उस खुदा की ही इबादत करेंगे, पूजेंगे आपके माबूद बरहक को और आपके बाप दादा हजरत इब्राहिम, उनके बड़े बेटे हजरत इस्माइल और छोटे बेटे हजरत इसहाक के माबूद बरहक को पूजेंगे, जो माबूद यकता है, जो एक खुदा है। इसके माबूदियत में कोई भी इसका शरीक नहीं है ना? खुदा के माबूद होने में कोई उसका शरीक नहीं है। और हम हमेशा हमेशा के लिए इसी अल्लाह ताला के नियाजमंद और पुजारी रहेंगे। ये किसने कहा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने, है ना? क्योंकि आपसे सवाल किया गया था कि मेरे मरने के बाद तुम भटक तो नहीं जाओगे, है ना? तो क्या किया आपके बेटों ने कि जिस पर आप है उसी पर हम भी कायम रहेंगे। तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये वो उम्मत है जो गुजर चुकी, इसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और तुम जवाब दे न होंगे उसके जो वो करते थे। इन बुजुर्गों पर झूठ गढ़ने से क्या फायदा, है ना? जो यहूदी लोग कहते हैं ना कि हमें तो वसीयत की गई थी कि तुम इसी दीन पर रहना, यहूदियत पर रहना, ईसाइयत पर रहना, इन लोगों ने ये झूठ बांधा ना, तो इन बुजुर्गों पर ये झूठ बांधना, इन बुजुर्गों पर झूठ गढ़ना से क्या फायदा है? इसमें कोई फायदा नहीं है। अब तो ए यहूदियों, इन बुजुर्गों को जो होना था हो चुका है ना, जो उनके लिए उनके मुकद्दर में था वो उन्होंने पा लिया, उनके मुकद्दर में भलाई थी तो उन्होंने भलाई पाई, है ना? और समझ लो कि ये वो उम्मत है जो गुजर चुकी है, इनका अहद खत्म हो गया, अब इनका वक्त क्या हो गया? खत्म हो गया। जो पहले गुजर चुका उसके लिए वो बदला है जो उसने कमाया, यानी उसने जो कुछ भी किया, अच्छे अमाल किए, जो पिछली उम्मत गुजर गई, अगर पिछली उम्मत वालों ने अच्छे अमाल किए हैं तो उसका बदला उन्हें अच्छा मिलेगा, और अगर उन्होंने बुरे अमल किए हैं तो उसका बदला उन्हें बुरा दिया जाएगा। और अब रहे तुम, है ना, तो तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। अगर तुमने नमाजें पढ़ी है तो तुम्हें नेकियां कमाई, अगर तुमने झूठ गढ़े है, तुमने फसाद फैलाया है तो तुमने इससे क्या खरीद लिया? आखिरत में अपने लिए अजाब खरीद लिया। और जिस तरह वो तुम्हारे जिम्मेदार न थे, कौन? जो पिछले की उम्मत गुजरी है, जिस तरह वो हमारे अमाल में जिम्मेदार नहीं थे कि हम जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी उनके सर पर होगी, है ना, इसी तरह ना हम उनके जिम्मेदार हैं और ना वो हमारे जिम्मेदार हैं, बल्कि हम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। हम जो करेंगे हम वही कमाएंगे। यानी जो फसल हम बोएंगे ना, हम गेहूं बोएंगे तो फसल जब उगेगी तो हम गेहूं ही काटेंगे, है ना। कपास बोएंगे तो हम कपास ही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं बोया और कपास काटेंगे। मतलब जो हमने जिस चीज़ की खेती की है बस हमें वही उसका मिलने वाला है। तो हम अगर अच्छा अमल करेंगे तो हमें अच्छा बदला मिलेगा, और बुरे अमल करेंगे तो हमें इसका बदला भी बुरा मिलेगा। तो तुम भी जवाब दे न होगे उस अमल के वो जो किया करते थे, है ना। उन लोगों ने अगर बुरा काम किया, हमारे पहले वालों ने अगर बुरा काम किया है तो उसके बुरे अमल का हमें जवाब देना नहीं है,
اور ہمارے برے عمل کا جواب انہیں نہیں دینا، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا جواب دے. تو پھر ان کا نام لینا اور ان پر جھوٹی تہمت لگانا چھوڑ دو، ہے نا. کیونکہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے تو حق کی راہ دکھائی تھی، ہے نا، سچا راستہ دکھایا تھا نا کہ ایک خدا کو ماننا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی فساد نہ پھیلانا، کبھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہے نا. تو یہ انہوں نے حق کا راستہ بتا دیا. اب تم ان کے اوپر جھوٹ گڑو کہ ان لوگوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں بتایا، تو یہ جھوٹ پھیلانا چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے تو تمہیں بتایا تھا راستہ، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں بتایا، یہ نہیں کہا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور بولے کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو راہ پا جاؤ. جواب دو بلکہ دین ابراہیم کو جو یکسائی سے خدا پرست تھے اور نہ تھے مشرکوں سے. ذرا کعب ابن اشرف اور مالک ابن سیف اور وہاب ابن یہودا اور ابو یاسر ابن خطب سرداران یہود. یہ کون تھے؟ یہودیوں کے سردار تھے، لیڈر تھے. اور نجران کے عیسائیوں میں سے سید اور عاقب. ایک سید، دیکھیں سید یہ جو ہم عام لفظ میں بولتے ہیں نا سید، یہ آج اہل بیت اطہار کے لیے کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اس کے لیے سید کا استعمال ہوتا ہے. لیکن سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سردار، قوم کا لیڈر. تو یہاں سید سے مراد کیا ہے؟ قوم کا لیڈر، سردار. ٹھیک ہے. سید اور عاقب اور ان کے ساتھیوں کی جرت اور جسارت دیکھو کہ اپنے کم اور اپنے دین کی باہم ڈینگے مارا کیے، اپنے کو دوسرے سے بڑھایا چڑھایا کیے. ہے نا. یہ دوسروں کو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ دوسروں سے افضل بتاتے تھے. یہودی لوگ، یہ آج بھی یہودی لوگ یہی کرتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھیں وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، ہے نا. تو یہ پچھلے جس طرح یہ لوگ کرتے تھے اسی پر یہ لوگ آج بھی قائم ہیں. اور اب ایسی جرت بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں سے بھی بولے یہودی اور عیسائی لوگ کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی. یہودی کہے کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہے کہ عیسائی، تو راہ حق پا جاؤ گے. تو جب یہودی اور عیسائی جب مسلمانوں کو ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ تم لوگ یہودی ہے، تو کیا کہتے تھے کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، کیونکہ یہودی ہو جاؤ کہ تمہیں سچا راستہ مل جائے گا. کیونکہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، تو تمہارا راستہ کیا ہے؟ یہودیت کا راستہ. یہ لوگوں کا کہنا یہ تھا، تاکہ تم یہودی ہو جاؤ. اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ تم عیسائی ہو جاؤ، کیونکہ یہی راستہ سچ کا راستہ ہے نا. تو ہر کوئی مسلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ راہ حق پا جاؤ. تو اب مسلمانوں کو کیا کہنا ہے کہ تم انہیں جواب دو، ہے نا. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ انہیں جواب دو، کنہیں یہودی اور عیسائیوں کو جواب دو کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہے نا. یہ صرف نام کے ہے نا. تو یہودی لوگ جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. اور عیسائی ہے جو حضرت موسیٰ کے بارے میں یہودی تلقین قبول نہیں کرتے، ہے نا. یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیغمبروں کو نہیں مانتے. یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور حضرت ابراہیم کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کو ماننے والے حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کو نہیں مانتے، ہے نا. اور حضرت ابراہیم کو دونوں مان رہے ہیں. یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کس کو مان رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو. لیکن جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں وہ ان دونوں میں سے کسی ایک بھی نبی کو نہیں مانتے، ہے نا. تو یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ دو، ان کو نہیں بلکہ دین ابراہیمی کو، کہ کہو کہ راہ حق اسی میں ہے. اے حضرت ابراہیم جو یکسائی سے سارے معبودان باطل سے بیزار ہوتے ہوئے صرف
खुदा परस्त थे, है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? खुदा परस्त थे। पहले से ही उन्होंने अपनी उम्मत को क्या कहा था कि तुम बातिल परस्ती से मुंह मोड़ लो। जिस तरह दूसरे पैगम्बरान ने इस्लाम ने तालीम दी थी, इसी तरह इन्होंने भी यही तालीम दी थी। और मुशरिकीन जो उन्हें मुशरिक बनाने में लगे रहे थे। कौन? मुशरिकीन जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरे माबूदों को शरीक बनाते थे, वो लोग इन्हें मुशरिक बनाने पर तुले थे। लेकिन इनका ईमान इस कदर मजबूत था कि वो सिर्फ खुदा पर और खुदा की वहदानियत पर अड़े रहे। वो भी तुम्हारी तरह अहमक है। हजरत इब्राहिम हरगिज न थे मुशरिकों बुत परस्तों से, है ना। क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना वमा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कह दो कि हम मान गए अल्लाह और जो कुछ उतारा गया हमारी तरफ और जो कुछ उतारा गया इब्राहिम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी नस्ल की तरफ, जो कुछ दिए गए मूसा और ईसा और जो कुछ दिए गए सारे अंबिया अपने परवरदिगार की तरफ से। हम नहीं छोड़ेंगे कोई उनका और उनमें से और उसी के नियाज़मंद है। इन गलत बोली वालों से ए मुसलमानों कह दो कि अब हमारी बोली सुनो, है ना। ये लोग जो कहते थे कि यहूदी हो जाओ राह हक पा जाओगे, ईसाई हो जाओ राह हक पा जाओगे, तो अब इन लोगों से जवाब दिया जा रहा है कि ए गलत बोली बोलने वालों से कह दो कि ए मुसलमानों कह दो कि अब हमारी बोली सुनो। वो ये कि हम मान गए अल्लाह ताला को वही माबूदे बरहक है और कदीम भी ज़ात व सिफात में यकता है ना। वो पहले से ही अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात व सिफात से है ना, पहले से ही है, जो सबसे पुराना है ना। अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया के बनाने से पहले मौजूद है ना। उससे पहले कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, वो और उसकी सिफतें ही मौजूद थी। और कुरान पाक में जो कुछ भी हुक्म वगैरह उतारा गया हमारी तरफ और पैगंबर जो हमारी हिदायत के लिए भेजे गए, हमने सबको मान लिया, है ना। हम मुसलमानों का अकीदा है ना कि हम हज़रत इब्राहिम पर भी ईमान रखते हैं, हज़रत ईसा पर भी ईमान रखते हैं, हज़रत मूसा पर भी ईमान रखते हैं, और तमाम जितने भी पैगंबरान इस्लाम आए उन तमाम को हम मानते हैं। हम यहूदी और ईसाइयों की तरह, नसरानियों की तरह नहीं है कि एक नबी को माने और दूसरे को न माने, बल्कि हम मुसलमान हैं और हम तमाम अंबिया को मानते हैं और हर उस हुक्म को मानते हैं जो खुदा ने हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए कुरान पाक में भेजा है। सबको मान लिया और नबी और कुरान के हुक्म से हमने वो भी मान लिया जो कुछ भी 10 सहीफों में उतारा गया था, है ना। जो 10 सहीफे और उससे पहले जितने भी आए खुदा की किताबें अंबिया इकराम पर उम्मत के भलाइयों के लिए, तो उन तमाम को भी हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पिछले अंबिया इकराम पर जो खुदा का कलाम नाजिल हुआ था हम उसको नहीं मानते, बल्कि हमारा ईमान है कि वो भी खुदा का पैगाम है, वो भी सच है, तो हम उस पर भी ईमान रखते हैं। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब और उनकी आलो औलाद पूरी नस्ल की तरफ कि इस नस्ल में अंबिया भी हुए और हज़रत इब्राहिम के सारे सहीफे उन सब की हिदायत के लिए थे, है ना। इन तमाम अंबिया इकराम और इनके ऊपर जितने भी सहीफे आए वो तमाम किसके लिए थे? उम्मत के लिए थे, उम्मत की हिदायत के लिए थे, और हम इन तमाम को भी क्या करते हैं? मानते हैं। और अंबिया भी उन्हीं सहीफों की तबलीग फरमाते थे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए सहीफे, उन तमाम को भी क्या करते थे? अंबिया इकराम तबलीग फरमाया करते थे जो अंबिया पर नाजिल होते थे। तो वो सहीफे उन सब के तरफ उतारे गए जहाँ कहीं थे, है ना। तो ये जो अंबिया पर सहीफे थे वो भी क्या थे? बंदों के लिए हिदायत का रास्ता थे, है ना।
और इन सहीफों ही पर महदूद नहीं, बल्कि हम लोग तो वो भी मान गए जो कुछ नामजद तौरेत दिए गए, है ना, जो तौरेत नाम की किताब हमें दी गई थी। यानी सिर्फ हमारा ईमान कुरान पाक पर नहीं है, बल्कि जो तौरेत नाम की किताब हमसे पहले अता की गई थी, हम उस पर भी ईमान रखते हैं। हजरत मूसा और दी गई थी हजरत मूसा, और नामजद इंजील दी गई थी हजरत ईसा पर, है ना। तो हम इंजील को भी मानते हैं और तौरेत को भी मानते हैं और ज़बूर को भी मानते हैं, और इन किताबों के अलावा जितने छोटे बड़े सहीफे आए उन तमाम को भी क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी दिए गए थे सारे अंबिया अपने परवरदिगार अल्लाह ताला की तरफ से, उन तमाम पर हम ईमान रखते हैं। यहूदियों का हाल ये है कि हजरत मूसा वगैरह को मानते हैं और हजरत ईसा का इनकार करते हैं, है ना। ये यहूदी क्या करते हैं कि हजरत मूसा और दूसरे अंबिया इकराम थे उनको तो मानते थे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या करते थे, इनकार कर देते थे। और किसी एक नबी का इनकार करना भी कुफ्र है। और ईसाइयों का भी यही हाल है कि हजरत ईसा को मानते हैं और पैगंबर इस्लाम का इनकार कर देते हैं, है ना। तो उन लोगों का भी इसी तरीके का हाल था। और इन दोनों का तरीका ये है कि कुछ से इनकार कर दे, मगर हम मुसलमान सभी को मानते, है ना। इन लोगों का क्या था कि किसी को माने किसी को ना माने, लेकिन मुसलमान को ईमान की दौलत और ईमान और अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें ये दर्स दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि जिस तरह तुम मुझे मानते हो इसी तरह मुझसे पहले अंबिया इकराम पर भी ईमान रखो, है ना। ये आपका सबक था, ये आपका दर्स था। और इसी मानने में हम किसी तरह भी नहीं छोड़ते कोई भी जो उन अंबिया का फ़र्द हो, है ना। अंबिया इकराम में से किसी एक फ़र्द का भी हम इनकार नहीं करते, क्योंकि किसी एक फ़र्द का, किसी एक नबी का, नबियों में से किसी एक नबी का इनकार करना ये क्या है, कुफ्र है। इसलिए हम किसी एक नबी को भी मानने से इनकार नहीं करते, बल्कि हम तमाम पर ईमान रखते हैं। हर नबी को नबी मानते हैं और उस नबी के हर पैगाम को उनके अहद का पैगाम इलाही जानते हैं, है ना। हर नबी को नबी मानते हैं और जो नबी का जिस अहद यानी जिस ज़माने में उनके ऊपर खुदा का पैगाम नाजिल हुआ, उस पैगाम को भी हम खुदा का पैगाम मानते हैं। और गोया यहूदी और नसरानी अपनी अपनी आसमानी किताब में तहरीफ कर दी, है ना। यहूदियों और नसरानियों ने अपनी अपनी किताब में रद्दो बदल कर दिया, बदलाव कर दिया। अरबी ज़बान में तर्जुमा करते वक्त कुछ का कुछ कर दिया, मगर इंजील व तौरेत का नुज़ुल हुआ था उस पर हमारा ईमान है। अगरचे इन लोगों ने इसमें रद्दो बदल कर दिया है, लेकिन हम इस पर ईमान रखते हैं कि तौरेत और ज़बूर, है ना, और इंजील ये खुदा का कलाम है, इसलिए हम इस पर ईमान रखते हैं। ये सारे सहीफे और किताबें गोया कुरान करीम से मनसूख है। मनसूख यानी बाद में, मनसूख ये एक कानून है कि एक नबी के आने के बाद, है ना, एक रसूल की शरीयत के आने के बाद जो उनके ऊपर किताब या सहीफे नाजिल होते थे, तो जो पहले वाले नबी पर, जो पहले वाले रसूल थे, उनके ऊपर जो खुदा का पैगाम नाजिल होता था, तो वो क्या कर दिया जाता था, मिटा दिया जाता था, है ना, उसको छोड़ दिया जाता था। और जो अब नई शरीयत आई है, जो नया कानून आया है, उस पर अमल करते थे। इसी तरह कुरान पाक पर हम अमल करते हैं, लेकिन उससे पहले के जितने भी खुदा के कलाम आए, तौरेत आई, इंजील आई, ज़बूर आई और जो सहीफे आए, उन तमाम को हमने मनसूख कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया, है ना। ईमान तो रखते हैं लेकिन हमने उसको मनसूख कर दिया, और अमल किस पर करते हैं, कुरान करीम पर, है ना। मगर हम इतनी बात बराबर मानते हैं कि ये आसमानी किताबें हैं, ये हमारा ईमान है कि ये आसमानी किताबें हैं। और इस बारे में हमें यहूदों और नसारा की कुछ परवाह नहीं, है ना। वो क्या कहते हैं इस पर हमारी कोई
परवाह नहीं है। हम हमारे ईमान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारा ये ईमान अपने अल्लाह के हुक्म से है ना। खुदा ने फरमाया ना कि अंबिया को मानो, उनके कलाम को मानो जो उन पर नाजिल हुआ था। तो ये खुदा का फरमान था, खुदा का हुक्म था, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मानते हैं। और हम यहूदों और नसराना के चाल नहीं चलते कि अल्लाह ताला की भी न सुने, है ना। तो ये हमारी चाल जो है, हमारा रहन सहन जो है, इन यहूदी और नसरानियों की तरह नहीं है कि हम खुदा के पैगाम को झुठला दे, खुदा के पैगाम को ठुकरा दे, बल्कि हम उस हर एक पैगाम पर अमल करते हैं जो खुदा ने हमारे ऊपर भेजा है। बल्कि हम लोग इसी अल्लाह ताला के नियाज़मंदी, मखलूस, फरमाबरदार और पुजारी है। जो अल्लाह तबारक व तआला है, हम उसी की इबादत करते हैं। और हज़रत अल्लाह तबारक व तआला की एक हदीस कुदसी है। क्या है? हदीस कुदसी। हदीस में भी एक फ़र्क है, याद रखें, है ना। हदीस कुदसी क्या है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाई हो, लेकिन ज़ुबान रसूल अल्लाह की, है ना। हदीस में भी 2-3 तरह की हदीस कुदसी है, हदीस है ना। तो हदीस सबसे पहले कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और अम्र को, यानी जो नबी ने बात बताई हो वो भी हदीस कहलाई जाती है। जो नबी ने काम किया हो, फेल, उसको भी हदीस कहते हैं। और जो नबी का फरमान हो उसे भी हदीस कहते हैं, है ना। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के फरमान जो खुदा ने बयान किया है, लेकिन ज़ुबान प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बात बयान की हुई हो, उसे क्या कहते हैं? हदीस कुदसी। तो हदीस कुदसी में है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरा बंदा मेरी कज़ा पर राज़ी नहीं, कज़ा यानी हुक्म, क्या होता है? हुक्म, यानी जो मेरा बंदा मेरे हुक्म पर राज़ी नहीं और मेरी अता पर शुक्र नहीं करता, है ना। मेरी अता यानी खुदा ने हमें रिस्क दिया, उस पर शुक्र नहीं करता, खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, उस पर शुक्र नहीं करता, है ना। आँखें दी, सेहतमंद ज़िंदगी दी, उस पर शुक्र नहीं अदा करता, है ना। तो खुदा क्या फरमाता है? जो मेरी हुक्म पर, मेरे कज़ा पर राज़ी नहीं और मेरे अता पर, मेरे देने पर शुक्र नहीं करता, तो उसे चाहिए कि वो मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे। क्या कहता है? मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे। लेकिन खुदा के अलावा कोई ऐसी बारगाह है नहीं ना। तो और खुदा की बारगाह से जो हट गया वो ईमान से क्या हो गया? हट गया, ईमान उसका ज़ाया हो गया, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हर एक नेमत का शुक्र अदा करना है और उसके बताए हुए हर एक फरमान पर और उसकी जानिब से आने वाले हर एक हुक्म पर हमें क्या करना है? राज़ी रहना है। ठीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।